Good morning, dear students. Hope you all must have completed your work that I have given you yesterday, and also you must have read chapter number 2. So, children, today I am going to start with the second chapter of your reader book, that is The Lucky Bird. The Lucky Bird is a story between a woodcutter and a bird named Huma, which was a magical bird who was living in the forest. So let's start with the chapter. Chapter 2, The Lucky Bird. Long time ago, there was a poor woodcutter who was living in the village in Kashmir. So the village where the woodcutter was living was in Kashmir, and he used to earn very less as he was cutting wood in the nearby forest and selling them in the local market. So the woodcutter was very poor, so he was not able to fulfill the basic needs of his family, and he was having a big family which comprises of himself, wife and 3 daughters. And he was not able to even provide them with a bit of meat, and also he don't had a pair of shoes to wear in. And in the cold winters, he and his entire family used to cover their bodies or cover themselves with rags. Rags, I think you all must be knowing, जो फटे पुराने कपड़े होते हैं और हम कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ के एक छोटा सा क्लॉथ बनाते हैं, that is known as rag. So one day what happened, this woodcutter went to the nearby forest as usual, because he was a woodcutter, he used to cut wood in the forest. So he went there, and that day he was not feeling well. So when he went there, he fell asleep. So he lay down under a tree. So suddenly what happened? There was a bird, Huma, as you can see in the picture, and she was a magical bird with magical powers. So when she saw the woodcutter sleeping beside the tree, underneath the tree, she felt very pity about him. से बड़ी दया आई उसके ऊपर, बेचारा सा वो लग रहा था. Then she immediately flew down, नीचे उड़ के आई, and she deposited a golden egg by the bundle of wood. जो ये bundle of wood आप देख रहे हो यहाँ पे, तो she kept a golden egg nearby that bundle of wood. And immediately she flew away. वहाँ से वो उड़ गई. After that what happened? After some time the woodcutter awoke and saw the egg. woodcutter जब उठा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक golden egg पड़ा हुआ है. He picked up and wrapped it in his waistband. And उसने क्या किया कि आप यहाँ पे देख रहे हो, उसने कमर में एक टॉवल बांध रखा है, दिस इज नोन एज वेस्ट बैंड. एंड इमीडिएटली वो उठा एंड ही टुक दैट एग एंड उसको उसने जल्दी से लपेट लिया अपने वेस्ट बैंड में. देन ही टुक अप हिज बंडल ऑफ वुड एंड वेंट टू द शॉपकीपर हु जनरली बॉट इट. एंड वो भागते हुए उसी शॉपकीपर के पास गया जो जनरली उससे वो लकड़ियाँ खरीदता था. After giving him the bundle, he showed the shopkeeper the golden egg. And shopkeeper के पास पहुंचते ही जब उसने वो लकड़ियों का बंडल उसे हैंड ओवर किया, and immediately उसने उसको वो golden egg भी दिखाया. The woodcutter had no idea about the value of egg. And woodcutter को कोई आइडिया नहीं था कि वो जो golden egg है उसकी क्या वैल्यू थी. But the shopkeeper knew it. But जो shopkeeper था उसको पता था कि जो गोल्डन एग है उसकी क्या वैल्यू है. गोल्ड का तो रेट आप सबको पता है, आजकल गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा हाई है.
एंड ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है। तो पहले जो भी ट्रेड होता था वो गोल्डन कॉइन्स में ही होता था। सो द ग्रीडी शॉपकीपर बॉट द एग फॉर अ पिटी सम एंड देन आस्क्ड द वुडकटर टू गो एंड गेट द बर्ड दैट लेड इट। एंड वो जो लालची शॉपकीपर था उसने क्या किया, उसने वो एग खरीद लिया, लेकिन उस एग के उसने बहुत ही थोड़े से पैसे दिए उसको। और वुडकटर को क्या लालच दिया कि तुम जंगल में जाओ और उस बर्ड को पकड़ के लाओ, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जब तुम वो बर्ड पकड़ के लाओगे मैं तुम्हें बहुत सारा रिवॉर्ड दूंगा। एंड वुडकटर ये सुन के बहुत खुश हो गया एंड ही प्रॉमिस्ड दैट शॉपकीपर कि मैं डेफिनेटली उस बर्ड को पकड़ के लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट डे अगेन द वुडकटर वेंट टू द जंगल फॉर कटिंग द ट्री एंड अगेन ही sat down to rest under the same tree where he found the egg and pretended to sleep. और इस टाइम वो सब pretend करता, he was enacting to sleep, but he was not sleeping, he was all awake. Then immediately what happened, Huma came again, and that innocent bird, she again came, and noticing that he was still as poor as ill looking as before, thought that he might not have seen the egg. तो उसने सोचा कि बेचारे ने शायद एग को नहीं देखा होगा और अभी भी इसकी जो कंडीशन है वो उतनी ही खराब है जैसे कि पहले थी। Therefore, it went near him and laid another egg close by him. तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, उसने वो एग नहीं देखा, मैं फिर से एक एग इसे दे देती। In such a spot that he could not possibly miss seeing it. And वहाँ सोते सोते वो उसने उस बर्ड को देखा, बट हुमा जो है उसको ये नहीं पता था कि वुडकटर जो है वो नाटक कर रहा है सोने का, एक्टिंग कर रहा है सोने का। बट द वुडकटर वॉज नॉट asleep at all. बट वुडकटर सो नहीं रहा था। As soon as he saw the bird and the egg, he caught the bird and caught up to carry it to the shopkeeper. और जैसे ही उसने बर्ड को अपने पास में आते हुए देखा, उसने झट से उस बर्ड को पकड़ लिया और उसको लेके वो शॉपकीपर के पास चलने लगा। तभी हुमा ने क्या कहा, ओ what are you doing to do with me? तुम क्या करने जा रहे हो? Do not kill me, do not imprison me, but set me free, pleaded the bird. प्लीज मुझे पकड़ो नहीं, मुझे बंद नहीं करो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे जाने दो। बर्ड ने बहुत रिक्वेस्ट की। You shall not fail of a reward. तुम किसी रिवॉर्ड को जीत सकते हो, बहुत इजीली जीत सकते हो, फेल नहीं होगे तुम उसमें। एक काम करो, तुम मेरा एक पंख निकाल लो और उसे आग की तरफ डालो और तुम तुरंत ही मेरे देश में पहुंच जाओगे। तो उसके देश का नाम क्या था? कोहिक्वाफ, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं जो कि तुम्हें ज़रूर से रिवॉर्ड देंगे। दे विल गिव यू अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स द प्राइस ऑफ विच नो किंग ऑन अर्थ कुड गिव यू। और वो तुम्हें एक नेकलेस देंगे पर्ल्स का, मोतियों का हार देंगे, जो कि पूरी धरती पे कोई भी राजा तुम्हें नहीं दे सकता है। But the poor ignorant woodcutter would not listen to the bird's pleading. लेकिन उस अनजान जो वुडकटर था उसने बिल्कुल भी इस बर्ड की एक भी बात नहीं मानी, कुछ नहीं सुना। His mind was too much occupied with the thought of the reward he would get from the shopkeeper. उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उसे रिवॉर्ड मिलेगा शॉपकीपर से। So he simply the bird in his trap and उसने कस के पकड़ लिया उस बर्ड को जहाँ पे उसने अपने वेस्ट बैंड में से बांधा था, और वो जल्दी जल्दी भागने लगा शॉपकीपर के पास, जितनी तेज वो भाग सकता था। बट अलास द पुअर बर्ड डाइड ऑन द वे फ्रॉम सफोकेशन। लेकिन बेचारी वो बर्ड वो सफोकेशन की वजह से मर गई। वॉट शैल आई डू नाउ? अब वो वुडकटर बहुत परेशान हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। द शॉपकीपर विल नॉट गिव मी एनी रिवॉर्ड फॉर अ डेड बर्ड। जो शॉपकीपर है वो इस मरी हुई बर्ड के लिए मुझे तो कोई रिवॉर्ड नहीं देने जा रहा है। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया।
I will show one of its feather to the fire and will reach its country. मैं इसका एक पंख निकाल के आग में डाल के और इसके देश पहुंच जाता हूँ. Perhaps the bird being dead will not make any difference. ये जो हुमा बर्ड है ये मर चुकी है, तो इसके मरने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा. Thinking so, he lit a fire and put one of the feather of the bird into it. और इतना सोचते ही उसने उस बर्ड का एक पंख निकाला और आग में डाल दिया, और पलक झपकते ही वो उसके देश पहुंच गया, जहाँ पे वो उसके पेरेंट्स से मिला, और उसने सारी जो बातें थी सारी उसके पेरेंट्स को बता दी. The parents and other birds wept a lot when they saw the dead body of their beloved relative. और जितने भी उसके रिश्तेदार थे और जितने भी जानने वाले थे वो सब रोना शुरू कर दिया, सब रोने लगे. Attracted by the mourning, a strange bird that happened to be passing at the time came in and inquired what the matter was. This bird could make the dead alive. तभी वहाँ से एक अनजान चिड़िया जा रही थी और उसने देखा लोगों को रोते हुए, दुखी होते हुए, तो उसने आके पूछा इमीडिएटली, उसने इंक्वायरी करी कि आखिर बात क्या है, जरा मैं पता तो लगाऊं. तो वहाँ पहुँचने पर जब पता चला कि वो मर चुकी थी, तो उसने बोला कि ये बर्ड ये तो किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है. Why do you weep? asked to the crying birds. उसने बोला तुम लोग रो क्यों रहे हो? जो बर्ड्स और जो उसके रिलेटिव से जो रो रहे थे उनसे पूछा कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो? Because our relative is dead, we shall never speak to it again. They replied. उन्होंने कहा कि हमारे जो रिलेटिव है वो तो मर चुका है, अब तो हम इससे कभी नहीं बात कर पाएंगे. Weep not, assured the strange bird. रो मत, तुम बिल्कुल बात कर सकोगे. Your relative shall live again. Saying so, it placed a piece of grass in the mouth of the corpse and chanted something. और उसने वो मरी हुई जो चिड़िया थी, जो हुमा बर्ड थी, उसके मुंह के अंदर कुछ ग्रासेस के पीस डाल दिए और कुछ मंत्र पढ़ा. एंड क्या हुआ? तभी हुमा बर्ड वॉज बैक टू लाइफ, वो जिंदा हो गई. Everybody was rejoicing when suddenly Huma saw the woodcutter. At once it remembered his faithlessness and carelessness. तो सब लोग खुशी से उछलने लगे, कूदने लगे. लेकिन जब हुमा की नज़र पड़ी उस लकड़हारे पे, उस वुडकटर पे, तो उसे याद आया कि इसने कितना बड़ा धोखा दिया है, कितनी केयरलेसनेस के साथ मुझे अपने वेस्ट बैंड में बांध के लेके गया. मैंने इतनी बार प्लीड किया लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी. I could have made you great and happy. मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा और खुशहाल आदमी बनाती. But now get you back to your burden of wood and humble home. अब मैं तुम्हें अपने वो लकड़ियों का जो बोझा है और तुम्हारे प्यारे से जो घर है वहाँ पहुँचा देती हूँ. As soon as the bird said so, the poor woodcutter found himself back again in the jungle, standing by the load of wood that he had prepared before. He was transported to Koh-Hikuaf. और पलक झपकते ही वो वापस से अपने उसी देश में पहुंच गया जहाँ पे वो था, जहाँ उसके बंडल ऑफ वुड्स पड़े थे जो उसने बनाए थे मार्केट में बेचने के लिए. He sold his wood and then went back to his wife and daughter in very sad frame of mind. और उन लकड़ियों को बेचने के बाद वो अपने घर गया, अपनी बीवी बच्चों के पास, और वो बहुत ही उदास था, बहुत दुखी था. क्यों? Because he never saw the lucky bird Huma again. क्यों? क्योंकि वो उसके बाद उसने उस लकी बर्ड हुमा को कभी भी नहीं देखा. So I hope chapter explanation is clear to everyone. So what is the moral of the story? A moral of the story is a greedy person is never at a rest. Sometimes he is forced to lose even what he already possesses because of his desire to have more and more. तो एक लालची इंसान जो है उसे कभी भी वो चीज़ वो हासिल नहीं कर पाता है जो वो सोचता है. क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार कोई चीज़ हासिल कर लेता है तो उसके मन में और लालच आ जाता है. तो वो क्या सोचता है कि मैं और भी ज़्यादा ले लूँ, और भी ज़्यादा मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए. तो जितना ज़्यादा आप लालच करोगे उतनी ही ज़्यादा
चीज़ें आपसे दूर होती जाएंगी. सो नेवर बी अ ग्रीडी पर्सन इन लाइफ. So I hope this chapter is clear to everyone. In case if you find any difficulty, you can call me and get your doubts cleared. Thank you for listening carefully. Have a nice day.